Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to this particular video where we are discussing the UPSC previous year question. First and foremost, I would like to wish you all a very happy Christmas and मैं दुआ करता हूँ that this year Santa fulfills all your wishes. And on this note, let us start off with today's discussion. Before that, let me tell you that I have taken a free prelims masterclass. For those of you who are new to this channel, I would request you to go to civilsclub.in and वहाँ पे जाके ये masterclass ज़रूर देखिएगा. It's an amazing masterclass and इसमें मैंने बताया है कैसे 120 प्लस आप प्री में easily स्कोर कर सकते हैं और कैसे मैंने ये ट्रिक से 120 प्लस आए. राइट, सो जस्ट गो टू civilsclub.in/learn and वहाँ जाके आप देख सकते हैं. चलिए, so let's begin with today's discussion. You all know the question, right? This is the question on your screen. GS3 का है ये, मेंस 2022 का. All right, so let's see. Discuss in detail the photochemical smog, emphasizing its first formation, second effects and mitigation. Explain the 1999 Gothenburg Protocol. तो इसमें आपको 4 पार्ट यहाँ पे पूछा गया है. First is you have to tell about its formation. Second, you have to tell about the effects of the photochemical smog. Then you need to tell about the mitigation strategy, right? And finally, you need to tell about the Gothenburg Protocol, right? तो ये 4 aspects को आपको address करना है, right? All right. So let's begin. And this is a 10 marker question. तो आपको मिलेंगे 150 words and you get 2 pages. 2 pages यहाँ पे लिखने होंगे आपको इसके लिए. चलिए. So सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बात करते हैं. First and foremost is the theme which is on photochemical smog, right? So photochemical smog को आप क्या कर सकते हो, simply आप define कर सकते हो, right? That photochemical smog, also called as Los Angeles smog, also called as the summer smog, is formed when pollutants such as nitrogen oxides, right? This and reacts with volatile organic compounds in the presence of sunlight, right? In the presence of sunlight. And this leads to the formation of a gas called as ozone, right? ये आपका एक hazy brown haze बन जाती है, right? Which has the concentration mostly of ozone and pan, right? अभी हम आगे discuss करेंगे, right? So this is what photochemical smog is, right? It's a mixture of pollutants which are formed when nitrogen oxides reacts with the volatile organic compounds in the presence of sunlight. Simply आप इस तरीके से बता सकते हो. Also called as Los Angeles smog, ठीक है? Also called as summer smog, Los Angeles smog, ये बोला जाता है. Actually smog is of 2 types. One is that of the summer smog, ठीक है, and the other is that of the winter smog, right? Winter smog वो होती है जो जनरली हमको कोहरे के वक्त दिखाई देता है, right? जो विंटर का जो अभी आता है. And this the photochemical smog is the summer smog, जो आपको ये जून जुलाई इस टाइम में when there is a lot of you can say heat, right? क्योंकि sun is at its peak, तभी आपको दिखाई देती है, right? तो this is about the summer smog which is also called as Los Angeles smog. अच्छा, winter smog को याद रखिएगा लंदन smog भी कहते हैं. कल को अगर कहीं आई जाए तो लंदन smog is winter smog and Los Angeles smog is the summer smog. All right. Now come to the second part of the question, that is how is it formed basically, right? तो formation पे आपको यहाँ पे बात करनी है, right? तो चलिए let's discuss about the formation of the smog. तो यहाँ पे जो मेजर कॉजेज है, राइट, वो आपको पता होनी चाहिए. अब देखिए लॉजिक अगर आप लगाएंगे तो यू कैन इजीली डिडक्ट द कॉजेज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की जरूरत आपको पड़ेगी, राइट, ठीक है, प्लस आपको वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जरूरत पड़ेगी. तो कहाँ से ये आता है, राइट? ऑब्वियस सी बात है, स्टबल बर्निंग, राइट? व्हेन यू बर्न अ लॉट ऑफ स्टबल देन क्या होगा, यू विल फाइंड NOx SO2 ये सब रिलीज होती है डेफिनेटली. देन वेहिकुलर पॉल्यूशन, you find all these vehicles, right, जो आपकी डीजल वगैरह से चलती है, they emit a lot of these nitrogen oxides which are very harmful, right? तो definitely ये भी आती है. Third is the industrial pollution, right? The industry, cement manufacturing and आपकी और जो जितनी भी industries है, right, ये सभी क्या करती हैं, all these gases are released into the atmosphere. You can talk of this. Then you can talk of the garbage dumping, राइट, जहाँ पे बहुत सारा मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और आपका ये बहुत सारा जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह और ये जितना भी है इस इलाके में, राइट, तो ये सारा कुछ आपको दिखाई देता है, राइट. तो गार्बेज डंपिंग, लैंडफिल्स, राइट, यहाँ पे आप चाहे तो लैंडफिल्स भी लिख सकते हैं, अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, लैंडफिल्स का यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं. देन यू कैन राइट स्पेशली इन द एरिया वाइज अगर हम बात करें, राइट, तो यू विल फाइंड इन द नॉर्दर्न एरियाज,
you will find large number of automobiles, right, etc. Urban areas, right, urban areas में अगर आपको देखोगे तो बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स दिखाई देती है यहाँ पे, right, तो वहां पे क्या होगा, you will find a lot of nitrogen oxides. तो again the concentration NOx increases, VOC increases, and as a result what happens, the ozone is formed. Then you will find especially in the northern areas, Delhi और ये आपका मेरठ और ये नोएडा गुड़गांव इन साइड में स्पेशली क्यों दिखाई देगी, because of the nearby stubble burning in Punjab Haryana regions, right. तो and Delhi becomes a landlocked you can say place. तो हर तरफ से क्या होता है, खूब सारी यहाँ पे when you will find और प्लस दिल्ली का itself का खुद का pollution, तो as a result you will find this phenomena very common in summers in Delhi, right. So ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, तो region wise भी आपने यहाँ पे बता दिया, plus you told about the reasons also, right, कि why are these this phenomena so common, right. तो आपने दोनों ही चीजों को यहाँ क्या कर दिया, एड्रेस कर दिया. नाउ देखिए कुछ केमिकल इक्वेशंस है, ये आपको पता होनी चाहिए. इफ यू कैनॉट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स तो जस्ट रिमेंबर दिस वन इक्वेशन, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्लस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस कुछ ऑक्सीजन मिलेगी प्लस अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन विल रिजल्ट इनटू ओजोन, राइट, प्लस पैन, आप ये भी लिख सकते हैं पेरऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इतना मत लिखिएगा बट पैन लिख देंगे हो जाएगा, या प्लस अदर पॉल्यूटेंट्स अदर ऑक्सीडेंट्स ऐसे लिख देंगे चल जाएगा, ठीक है. मैंने तो खाली इतनी ही इक्वेशन लिखी थी, बस इतना से ही चल जाएगा, ठीक है, राइट. नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन, ऑक्सीजन गिव्स यू ओजोन, ठीक है. और सिंपली आप यहाँ लिख सकते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, हो जाएगा. दैट्स मोर देन इनफ टू परहैप्स कन्विंस द एग्जामिनर दैट यू नो थिंग्स, राइट, ठीक है. ऑल राइट, तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया, राइट. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेशन. नाउ लेट्स टॉक ऑफ द इफेक्ट्स. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग, राइट. Now, I think this is very easy. Now, if you talk of the nature, so it is a brown haze. तो उससे क्या होगा, visibility gets reduced, right? Visibility क्या होगी, reduce होगी, है ना, बिल्कुल, right. Then उसके बाद क्या है, the ground level ozone. This is very harmful pollutant, and especially it causes a lot of irritation for the eyes, right? It causes breathing problem, asthma, right? ठीक है, and all these pollutants are carcinogenic in nature, right? Cancer causing. तो आप ये भी यहाँ पे बता सकते हैं, राइट. लॉन्ग टर्म में आप ये सब चीजें आप बता सकते हैं, राइट. देन उसके बाद व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट. देन यू विल फाइंड हार्डनिंग ऑफ लीव्स, स्पेशली दैट ऑफ टोमेटो, स्पिनच, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू ऑल दीज ओजोन, राइट. तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, राइट. एंड यू कैन ऑल्सो टॉक ऑफ दैट क्रॉप यील्ड्स भी क्या होगी, डिक्रीज देखने को मिली है, ये लिख सकते हैं. देन ऑन फौना अगेन यू फाइंड लंग इश्यूज, यू फाइंड देम बीइंग अनकंफर्टेबल, राइट. तो ये सब आप यहाँ पे बता सकते हैं. Then materials पे you will find cracking of paints, rubber का breakdown होना, right, ये चीज आपको दिखाई देती है. Then what happens is that you will find a temperature inversion, इससे देखने को मिल जाता है, right. And because of the fact that बहुत सारा यहाँ पे जब temperature inversion हो जाता है, then what happens is that the pollutants जो होते हैं यहाँ पे they are somehow trapped. ये एक टाइप का ट्रैप हो जाता है, ठीक है, तो ये निकल नहीं पाते, राइट, ठीक है. तो यू कैन टॉक ऑफ द ट्रैपिंग ऑफ पोल्यूटेंट्स ड्यू टू ऑल दिस टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग, तो ये वाला भी आप यहाँ पे फिनोमेना बता सकते हैं, ठीक है, राइट. एयर पॉल्यूशन वगैरह आप अच्छे से बता सकते हैं, फाइन. देन यू विल फाइंड दैट दिस यू कैन से द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ फ्री रेडिकल्स, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे एक फ्री रेडिकल के फॉर्म में आया, राइट, ठीक है. तो एंड ये ओजोन खुद में क्या होता है, ओजोन इज अ वेरी यू कैन से इट डज नॉट हैव दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, सो ये बहुत ब्रेक होते रहता है, ये कॉन्स्टेंटली O2.O में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये O किसी O2 के और मिलके फिर ये ओजोन बन जाता है. तो इट्स अ वेरी यू कैन से द रिएक्शन इज वेरी वेरी यू कैन से बाय साइड, ठीक है, ये एक दोनों साइड की रिएक्शन होती रहती है. तो ये जो फ्री रेडिकल्स आते हैं, व्हाट हैपेंस इज दैट इट डिस्टर्ब्स द नाइट्रोजन साइकिल, राइट, because of all these atmospheric radicals. तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा. So even the biogeochemical phenomena, they are impacted by the photochemical smog. Please remember this, right? बाकी eye irritation, damaging to proteins, high toxicity to plants, you can write all this, right? ये हमने ऊपर वहां पे डिस्कस भी कर लिया है, वेरी इजी. आई होप ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा. फाइन, ऑल राइट. सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Right, and the next part of the question is talking about the mitigation. How will you mitigate this? So इसके लिए simply आप लिख सकते हैं that जो भी vehicular pollution है उसको कम करो. आप उसको कैसे कम करो? Use the catalytic converters. They will allow the harmful nitrogen oxides
to perhaps release a gas which is less harmful in nature. Switch to more and more renewable energy, electric vehicles, right? इनका आप यूज करो, राइट? ठीक है, सोलर एनर्जी, इन सबको आप लाओ, ठीक है? जो अपनी बिल्डिंग्स है उसको बहुत ही एनर्जी एफिशिएंटली डिजाइन करो. यू कैन यूज द एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड्स, राइट? यूज ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर एप, एंड इसको आप लिंक कर सकते हो स्टबल बर्निंग से. That stubble burning can be used to promote and you can say produce more and more biofuels. ठीक है, तो उससे stubble burning भी रुकेगी, राइट? हैप्पी सीडर मशीन और ये सारी चीज आप लिख सकते हो, ठीक है? देन लाइफ स्टाइल चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मिशन लाइफ के बारे में आप बात कर सकते हो, यूजिंग मोर एंड मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है? मेकिंग मोर एंड मोर स्मार्ट चॉइसेस, राइट? बाय यूजिंग लेस एंड लेस ऑफ द डीजल व्हीकल्स, ठीक है? तो ये सारी चीज आप बता सकते हो. Then you can talk about reduction of the anthropogenic emissions, right? जैसे जितने भी हमारे ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे प्रोडक्ट्स को ना यूज करें जिनसे ये आपके जो एरोमेटिक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये रिलीज होते हैं, राइट? इनका आप रिड्यूस कर सकते हैं जो एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, राइट? तो ये सभी चीज आप यहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट दिस, ठीक है? तो हर लेवल पे हमने राइट फ्रॉम कंट्रोलिंग द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स टू कंट्रोलिंग द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सबको आप कहीं ना कहीं बता सकते हैं, ठीक है? आई थिंक 4-5 मेजर्स लिख दोगे, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि 10 मार्क्स का कितना लिखोगे. फाइन, ऑल राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज दैट ऑन द गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल, राइट? अब पहली बात तो बहुत बच्चों को यही नहीं पता था गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल क्या है, बट आप खुद दिमाग लगाओ, जब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल क्या कर रहा होगा? किसी तरीके से फोटोकेमिकल स्मॉग या ओजोन या इसी के बारे में बात कर रहा होगा, डेफिनेटली बात कर रहा होगा. एंड यही गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल भी था, दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड वे बैक इन 1999 टू एड्रेस द पॉल्यूटेंट्स दैट कॉज एसिडिफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन, व्हिच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, राइट? ठीक है. एंड व्हाट डज इट डू? इट सेट्स लिमिट्स ऑन द पॉल्यूटेंट्स, लाइक कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, अमोनिया, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? दीज आर वेरी वेरी हजार्डस बिकॉज दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन. फाइन, फाइन. देन उसके बाद क्या है? यू कैन टॉक दैट इट वाज अपडेटेड इन 2012 टू इवन इंक्लूड द पार्टिकुलेट मैटर. तो अब पीएम पे भी ये टारगेट रख रहा है, राइट? ठीक है. ब्लैक कार्बन को भी ये टारगेट कर रहा है, ठीक है? तो ये भी आप यहाँ पे चीज बता सकते हो, ठीक है, राइट? सो हमें क्या करना है पूरा का पूरा जो एयर पॉल्यूशन है उसको अब ये कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने की बात कर रहा है, ठीक है? सारे ये एलिमेंट्स को टारगेट कर रहा है, ठीक है, राइट? इसका ये जो ऑब्जेक्टिव है ये देखिए मैंने सीधे वहां से वेबसाइट से इसको कॉपी करा है, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे सारे पढ़ सकते हैं. टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द एमिशंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, NH3 एंड VOC, वही सारी चीजें, ठीक है? टू एंश्योर दैट ऑल दीज डिपोजिशंस डू नॉट एक्सीड अ पर्टिकुलर लेवल, ठीक है? ये सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है? एंड दिस इज द प्रोटोकॉल विच इज कंसिडर्ड टू बी अ मल्टी इफेक्ट, you can say multi pollutant protocol, right? Because it is targeting multiple, you can say pollutants, right? ओजोन को भी टारगेट कर रहा है, SO2 को भी, NO2 को भी, अमोनिया को भी, PM को भी, ब्लैक कार्बन को भी, सबको टारगेट कर रहा है, सबको रिड्यूस करना चाह रहा है. एंड इट इज सेड दैट इफ इट इज रैटिफाइड बाय ऑल दी कंट्रीज देन इट वुड रिप्लेस द ओल्डर प्रोटोकॉल्स विच कवर द सेम पोल्यूटेंट्स. तो अभी तक क्या होता था? अलग अलग पोल्यूटेंट के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है, बट दिस इज अ वेरी यूनिक प्रोटोकॉल, राइट? ठीक है. जैसे SO2 के लिए अभी हमारे पास एक हेलसिंकी एंड ऑस्लो प्रोटोकॉल्स है, राइट? सिमिलरली NOx के लिए हमारे पास एक सोफिया प्रोटोकॉल है, राइट? तो ये सब पुराने हैं, ठीक है, राइट? सिमिलरली वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हमारे पास एक जिनेवा प्रोटोकॉल है, राइट? तो दिस इज अ मल्टी पॉल्यूटेंट मल्टी इफेक्ट प्रोटोकॉल, राइट, विच ट्राइज टू रिप्लेस द ओल्डर प्रोटोकॉल्स दैट कवर द सेम पॉल्यूटेंट. फाइन. तो इस तरीके से आपने गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है? 2-4 लाइन भी आप लिख दोगे, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि 10 मार्क्स में ऑलरेडी आप क्या क्या लिख चुके हो. फर्स्ट आप स्मोक के बारे में बताओगे, देन उसके बाद मिटिगेशन के, उसके बाद उसके इफेक्ट के बारे में बताओगे, उसके मिटिगेशन के बारे में बताओगे, देन उसके बाद आप प्रोटोकॉल के बारे में बताओगे. तो ऑलरेडी आप काफी कंटेंट लिख चुके हो, ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड बी राइटिंग अबाउट द कंक्लूजन. कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं द वे फॉरवर्ड, कि और क्या क्या करें जिससे कि एयर पॉल्यूशन वगैरह कम हो जाए. सो इम्प्लीमेंटेशन द नीति आयोग ब्रीथ फ्री इनिशिएटिव, ठीक है? ये नीति आयोग ने सजेस्ट किया, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ब्रीथ फ्री इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है? देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NCAP नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम, राइट? अभी इसमें टारगेट्स को भी इंक्रीज किया गया है टू 40%, राइट? ठीक है, रिडक्शन कम करने की बात करी गई है, तो इसको स्ट्रिंजेंट वे में इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है? टू
ensure that air pollution is reduced. फाइन. तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस तरीके से हमने सारा का सारा जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से डिमोलिश कर लिया. नाउ टुमारो सेम क्वेश्चन वी वुड बी डिस्कसिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ GS3 UPSC मेंस. राइट. सो किसी को भी कोई डाउट हो तो ये आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में भी आ जाएगा, 6 PM पे डिस्कस करेंगे. चलिए मिलते हैं आप लोगों से इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो. एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. राइट. चलिए सी यू ऑल इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो. तब तक के लिए दिस विल बी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.